Ma'am, screen sharing also? Yes, ma'am, done. Done. Thank you. Yes, बेटे मैं बोल देती हूँ. If picture is not clear to you, please write first question. I have written few hints also, but you are requested not to look at the hints in the beginning. After solving the question, you can cross check. ठीक है? So please write the first question. Find number 1. Sorry, it is given that C function is equal to 40 plus 0.8y. 40 plus 0.8y. This is given. And we have to calculate number 1, disk savings. Number 2, MPS, value of MPS. Third, we have to find value of multiplier, that is K. मैं बोल रही हूँ बेटे, आप कोई बात नहीं, आप लिख लो. Third one is value of K, that is multiplier. And fourth हमने निकालना है value of average propensity to consume, APC. Given that, one more thing is given, that income level is rupees 4,000. Income level is rupees 4,000. ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, 3 और 4 मार्क्स में. पहले आप कर लीजिए, देन आई टेल हाउ टू डू. हाँ जी हर्षिता, डन. ओके, चलो अब वेरी इजी. हाँ जी बताइए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस सेविंग्स? अपन -40. -40. यस, -40. माइनस लगाना है साथ में, -40. अच्छा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन? 40. ठीक है, याद रखना है, ऑटोनमस पूछा जाए तो 40, अगर डिस सेविंग्स है तो साथ में -40. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीएस? 0.2. वेरी गुड, शाबाश. ये 0.8 है तो 1 में से माइनस कर दें, 0.2. वेरी राइट. देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? 5. 5. Both are answering. Yati Sharma, you have done bete? Yati Sharma, you also need to be fast बच्चे. K की वैल्यू आ रही है 5. अच्छा ठीक है बेटे. तो MP चाहे आप MPC से निकाल लो या MPS, आपकी मर्जी है. 0.8 0.2 कर दें, 1 by 0.2, तो हमारा आ जाएगा K की वैल्यू 5. वेरी राइट. एंड वैल्यू ऑफ APC? 0.81. Yes, very right. 0.81. एक बार इसमें क्या कर सकते हैं, in this, because they have given the level of income, तो in place of this y we can fill this value, we can put 4,000. वो सारा करके हमारे पास आ जाएगा C. तो जितनी भी वैल्यू आई डिवाइडेड बाय अगेन 4,000 से कर देना है, तो वी विल बी गेटिंग 0.81. ठीक है, चलो जी, वेरी गुड, शाबाश. चलो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट MPC. Calculate MPC, marginal propensity to consume, if as a result of increase in investment, by 60, by rupees 60, comma, national income rises by rupees 240. National income rises by 240. Done. कितना है आंसर बेटे? आ रहा है 0.75? Yes, ma'am. यस, वेरी राइट. 0.75. ये सिंपल क्वेश्चन है. क्या निकालना है हमने? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है नेशनल इनकम राइजेस बाय डेल्टा वाई इज गिवन 240, और हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है डेल्टा आई इज गिवन, दैट इज 60. तो ये हो जाएगा नेशनल डेल्टा इनकम डिवाइडेड बाय डेल्टा इन्वेस्टमेंट, 240 डिवाइडेड बाय 60.
तो उसके हिसाब से k की वैल्यू आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस MPC ऑल्सो 0.75, राइट बेटे. चलिए नाउ प्लीज नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड MPS if given means 2-3 things have been given. First is given income rupees 10,000, it is given. Secondly, autonomous consumption 500, autonomous consumption A is equal to 500, 500, and third is given consumption expenditure is equal to 800. Consumption expenditure is 800. Find out MPS. ठीक है. Firstly, you have to see कि whatever is given that is related to consumption function. So first, at the first place, we can form this consumption function, that is C is equal to A plus BY. Value of A is given 500, so let us put this value 500. C value is also given consumption expenditure, that is already given 800. So in place of this C, we can put 800. ठीक है. Autonomous consumption 500 we can write. Plus B is to be calculated. MPC निकालना, because we don't know MPC. क्योंकि MPS पूछा है ना, तो we can't say anything about MPC right now. So let it be like that only. B, in place of Y, we can put this value 10,000. So after solving all this, we get the value of B is equal to 0.75. Okay? But still, this is not the right answer, because in the question we have been asked about MPS. And here we are calculating MPC. So then we have to subtract this value from 1. तो ये आ जाएगा 1 minus 0.75, we will be getting 0.25. ठीक है. ये 3 और 4 marks में this question can be there. So correct answer will be MPS will be equal to 0.25. चलो जी. Let us do one more question of this type. Then we will move further towards national income side. Please write down. Given C function is equal to 100 plus 0.75y. C function is given 100 plus 0.75y, and investment expenditure is 1100. Calculate या find number 1 equilibrium level of income, number 2 consumption at the equilibrium level of income, and third investment multiplier. I repeat what is to be done. Number 1, equilibrium level of income. Secondly, we have to find consumption at this equilibrium level of income. And thirdly, we have to find investment multiplier. Done? Hint नहीं देखना है, ये बाद में है. ये तो मैंने लिख लिया कि I noted down questions from different papers. But you firstly solve and then cross check the answer. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटे. Ma'am, answer 4800 नहीं आना चाहिए. Yes, ma'am. मैंने क्या निकाला है? 44 निकाला है. 4400. एक मिनट चेक कर लेते हैं. I may also be wrong. Let us check. Equilibrium level of income का फॉर्मूला होता है y is equal to c plus i. ठीक है. तो c पहले हमारे पास है. c function is already given. Fine. i की वैल्यू भी given है. Okay, very right. Let us put the values. अभी चेक कर लेते हैं. तो c है हमारे पास 100 plus 0.75y plus 1100. ठीक है. तो ये आ गया 11 plus 1 1200. ये 0.75 0.25 बचा. ये कितना आ रहा है? 48 आ रहा है आपका. Yes. Okay, then I may be wrong. Please make the correction. ठीक है. इसको करेक्ट कर लीजिए. 48 कर लीजिए. नो प्रॉब्लम. अच्छा, उसके बाद फिर हमारा ये भी आई थिंक ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिकॉज व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस c फंक्शन 48 से करेंगे. ये चेक कर लीजिए. ये कितना आ रहा है? 3700. 30 700. 700. ओके. हाँ, बस वही चेंज हो गया फिर वहां से जो चेंज हुआ है ना. फाइन, नो प्रॉब्लम. 3700. सभी चेक कर लो. हर्षिता, यति, आप भी चेक करो बेटे. अगर आप तीनों का सेम आ रहा है दैट मीन्स इट इज राइट. ठीक है.
3700. Yes, ma'am. फाइन, ठीक है. लास्ट वन, के की वैल्यू निकालना है. 1/MPS कर लेते हैं. तो ये आ गया 1/, ये आपकी मर्जी है, चाहे 1/1 - MPC कर लो या 1/MPS कर लो, एज यू फील इजी. तो 0.25 हो जाएगा MPS. तो ये आ जाएगा 1/0.25. अपसाइड डाउन ये आ जाएगा 4. ये तो ठीक है. ठीक है जी, चलो. ma'am. वेरी राइट, वेरी राइट. नाउ लेट अस प्रोसीड. बस ये थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स ऑफ, एक मिनट. हाँ जी बेटे, फर्स्टली नोट डाउन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट 2 क्वेश्चंस आर गिवन. तो पहले ये कर लेते हैं. मैं बोल देती हूँ वैल्यूज, यू फर्स्टली नोट डाउन, बिकॉज ऐसे स्क्रीन से देख के मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड इनडायरेक्ट टैक्स. Calculate national income and indirect tax. Given values are: number 1, compensation of employees 2000. All these values are in rupees crore. So compensation of employees is 2000. Number 2, subsidy 40. Third, exports 100. Exports 100. Next, factor income from abroad 60. Factor income from abroad 60. Then profits are given 800. Profits 800. Then inventory investment 40. Inventory investment 40. Then imports 200. Imports are 200. Then net fixed investment. Net fixed investment 300. उसके बाद है rent is 500. Rent 500. Then next is gross domestic capital formation 440. Gross domestic capital formation 440. Next, gross national product at market price 3900. Gross national product at market price 3900. Next है factor income to abroad. Factor income to abroad 60. Next is royalty 300. Royalty 300. अब मैं एक बार फिर से क्विकली बोल देती हूँ. यू प्लीज चेक फ्रॉम योर नोटबुक. Compensation of employees 2000, subsidy 40, exports 100, factor income from abroad 60, profits 800, inventory investment 40, imports are 200, net fixed investment 300, then rent 500, gross domestic capital formation 440, gross national product at market price 3900, factor income to abroad 60, last one royalty is equal to 300, right? Firstly, calculate national income. Now, in this question, no method has been mentioned. है ना? कि with which method we have to calculate, it is not written there. So in that case, firstly, we need to observe all these values and see maximum values are in this question. They are related to income method. We ourselves have to decide. ठीक है? तो maximum values are given related to income method. So that means we can apply that method. ठीक है जी? तो national income, that means technically NNP at factor cost. So whenever we have to find anything with the income method, so we have to start with the term NDP at factor cost. Okay? After that, now you see what is required to be added or subtracted. Now you do.
I'm done. डन बेटे, जस्ट अ मिनट. हर्षा, you have also done बच्चे? मैम कर रही हूँ 2 मिनट. कर लो. अनम्यूट ही रखो, कोई बात नहीं, हम 3-4 जने ही हैं. अनम्यूट कर लो अपने आप को. In the meantime, I am also solving the next question which is to be given to you. Gurleen and Yati bete, keep your videos on. गुरलीन कौर, वेलकम. मुझे आपका पता ही नहीं चला आप कब आए हैं. आई थॉट कि ओनली बस ये तीनों ही हैं. चलो गुरलीन कौर, इसी खुशी में सारा सम करके दिखाओ जरा. पहले आप बताओ आंसर, जल्दी जल्दी करो, शाबाश. चलो मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, ऐसे फिर सारा टाइम इसी एक ही क्वेश्चन में लग जाना है. थोड़ा थोड़ा हिंट देती हूँ. यू प्लीज चेक हाउ हैव यू डन. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो फॉर्मूला हमारा बनेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बिकॉज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट इज टू बी मेड नेशनल, सो वी नीड टू एड एनएफआईए. ठीक. तो अब नाउ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, you can put a bracket and you can expand this formula, that is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. ठीक है. अब compensation of employees में क्या दिया हुआ है, let me see. Compensation of employees is given 2000 plus operating surplus में parts are given. ठीक है. तो इसमें ऐड हो जाएगा हमारा रेंट 500 प्लस इसमें ऐड होगा 300 रॉयल्टी. लास्ट वैल्यू इज गिवन रॉयल्टी. ठीक है. वैसे वैल्यूज होती हैं रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बट ज्यादातर क्वेश्चन में रॉयल्टी दिया नहीं होता, बट वी हैव टू चेक केयरफुली. तो रॉयल्टी इज गिवन 300 ऐड हो जाएगा, 2000 प्लस 500 प्लस 300 प्लस उसके बाद प्रॉफिट इज गिवन 800, सो ऐड 800. ये हो गए हमारे तीनों पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस के. मिक्स्ड इनकम इज नॉट गिवन, सो 0. ठीक. ये एक ब्रैकेट हो गई. दिस इज अवर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. उसके बाद प्लस करना है फिर एनएफआईए. अब एनएफआईए भी डायरेक्टली इट इज नॉट गिवन, उसके बोथ कंपोनेंट्स आर गिवन. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. तो सरप्राइजिंगली बोथ वैल्यूज आर 60 हियर. जरूरी नहीं है सेम हो, बट यहाँ पर सेम ही है. तो 60 माइनस 60, तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया. तो बाकी बच गया हमारे पास जो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, वही हमारे लिए बन जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो नाउ प्लीज चेक, इज इट 3600? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी राइट, वेरी गुड, शाबाश. रुपीज 3600 करोड़, एक पार्ट हो गया. ठीक. उसके बाद पूछा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स. तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए. इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन मार्क मतलब ये तो निकालना ही है. तो हमें जो फेमिलियर फॉर्मूला जो हम बोलते हैं, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. ठीक. अच्छा, अब अगर हम सब्सिडी को दूसरी साइड पे ले आए, जो निकालना है उसको एक तरफ कर लो, बाकी चीजें एक तरफ कर लो. तो ये हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक. अच्छा, अब हमें चाहिए जो मेन टर्म है, सब्सिडी इज गिवन, इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है. तो हमारे पास एक और चीज चाहिए, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक. तो अब उसके लिए अब आपने क्या करना है, नाउ यू प्लीज ऑब्जर्व द टेबल केयरफुली. जो वैल्यूज गिवन है उसमें देखो कि विच इज द हाईएस्ट टर्म विच इज गिवन. तो यहाँ पर दिया हुआ है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज गिवन.
ठीक, अब इसको हेल्प लेनी है, इसकी हेल्प लेके अपना बनाना है फॉर्मूला। तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस, अब आप देखो कि इसमें से क्या माइनस करो कि आपके पास सिर्फ NIT बचे। तो मतलब आप इसमें से माइनस करेंगे अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना, उससे सेकंड आइटम लेनी है ना, नेक्स्ट आइटम ले लो भी, कौन सी आइटम को माइनस करें। तो GNP एट MP तो दिया हुआ है, इसमें से अगर माइनस करते हैं GNP एट फैक्टर कॉस्ट तो हमारे पास वैल्यू आ सकती है NIT की। ठीक, अच्छा, अब सरप्राइजिंगली GNP एट फैक्टर कॉस्ट भी नहीं है, तो अब उसको हम बना सकते हैं अपने पास से। कैसे बना सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट में वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड NNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो अगर उसमें ऐड कर दें डेप्रीसिएशन, एक ब्रैकेट में करके कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट की जगह वी कैन राइट ब्रैकेट में NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रीसिएशन, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। नाउ अब डेप्रीसिएशन भी नहीं है, चलो एक और काम है, डेप्रीसिएशन भी निकालनी पड़ेगी। तो एक साइड पे लाइन लगा के कर लो या बॉक्स बना लो, जैसे आपको ठीक लगे। तो डेप्रीसिएशन के लिए अब आप देखो जरा क्या दिया हुआ है हमें, ये वैल्यू दी हुई है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से अगर हम माइनस कर दें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो वी कैन गेट डेप्रीसिएशन। ठीक, तो फॉर्मूला बनेगा डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पहले लिख लो। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, वो वैल्यू पुट कर सकते हैं 440। ठीक, माइनस, अच्छा अब नाउ ब्रैकेट में नाउ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बट अब हमें पता है कि उसकी जगह दो पार्ट दे दिए हुए हैं, तो अगर हम ऐड कर दें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स, ठीक है ना, प्रोसेस वही है, वैसे ही ऐड करना है। तो इन प्लेस ऑफ दिस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वी कैन ऐड टू वैल्यूज, एंड विच आर दोज वैल्यूज, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस करके प्लस चेंज इन स्टॉक्स। तो नाउ देयर वैल्यूज आर गिवन इन द टेबल। One is this net fixed capital investment दिया हुआ है, तो चाहे वर्ड इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल फॉर्मेशन है, वन एंड द सेम थिंग। डोमेस्टिक वर्ड भी दिया है या नहीं दिया है हार्डली मैटर्स, उसका मतलब डोमेस्टिक ही है। तो दैट इज गिवन 300 प्लस हमें दिया हुआ है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेंट्री वर्ड का मतलब स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, दैट इज 40। तो ये बन गया 300 प्लस 40 340, और हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था 440, माइनस कर दे 440 माइनस 340 इक्वल टू 100, तो डेप्रीसिएशन आ गया 100। अब इस 100 को ऊपर वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास मेन बन जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टैक्सेस आर इक्वल टू 3900 माइनस ब्रैकेट में आप करेंगे 3600 जो आपने ऊपर निकाला था NNP एट फैक्टर कॉस्ट 3600 प्लस डेप्रीसिएशन 100, तो ये बन गया 3700। ठीक, अभी भी हमारा लास्ट आंसर नहीं आया, अभी हमारे पास आया है ये NIT, डिफरेंस कर लें दोनों का 200 आ गया। ठीक, अब ये 200 को आप जो NIT वाला फॉर्मूला है उसमें पुट करें, तो ये बन जाएगा 200 इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, लेट अस सी सब्सिडी है 40, माइनस 40 कर दे, अब साइन चेंज हो जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली 240। ठीक है, अब थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूलाज हमने किए हुए हैं, बस वैल्यूज को ऊपर नीचे करना है कि कहाँ से क्या निकाल के कैसे एडजस्ट करना है, एवरीथिंग हैज बीन डन, तो थोड़ा सा केयरफुली करना है ऐसे क्वेश्चंस को। 240 इज द आंसर। ठीक, चलो नाउ लेट अस ट्राई टू डू द सेकंड ऑप्शनल क्वेश्चन, ये वाला। चलिए जी, प्लीज राइट डाउन। कैलकुलेट, मैं बोल देती हूँ बेटे, आप नोट कर लीजिए। कैलकुलेट GDP एट फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। Calculate GDP at factor cost and second factor income to abroad. Given values are number 1, compensation of employees 800, compensation of employees 800,
नेक्स्ट है प्रॉफिट्स 200, नेक्स्ट डिविडेंड्स 50. नेक्स्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 1400. 1400. Gross national product at market price 1400. Rent 150. Interest 100. Then gross domestic capital formation 300. Gross domestic capital formation 300. Next है net fixed capital formation 200. Net fixed capital formation 200. Then change in stock 50. Change in stock 50. Then factor income from abroad 60. Factor income from abroad 60. And last है net indirect taxes 120. Net indirect taxes 120. I am repeating all the values. You can cross check once again in order to avoid any mistake. We have to calculate gross domestic product at factor cost and factor income to abroad. Values are first compensation of employees 800, profits 200, dividend 50, gross national product at market price 1400, rent 150, interest 100, gross domestic capital formation 300, net fixed capital formation 200, change in stock 50, factor income from abroad 60, net indirect tax 120. चलिए, now try to do this. Ten minutes are left. Within these 10 minutes, this question is to be done. उससे पहले ही Done. डन बेटे कर लिया दिवांशी? ओके, लेट अस प्लीज वेट फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो, वो भी कर लें. हाँ जी, हर्षा कर लिया बेटे? हर्षा अरोड़ा? ओके, let me see Gurleen and Yati also. Hope they would have also done. गुरलीन, हाँ जी बच्चे, हो गया? हो गया कि हो रहा है? हो रहा है. एक तो हंस के कह देती हो, है डांट भी नहीं लगाने देती. अब हो रहा है, अब पूरा दिन होते ही रहना है? जरा जल्दी जल्दी करो, शाबाश, बी फास्ट. यति शर्मा, वेयर आर यू? She has left, I think. हाँ, दिख ही नहीं रही है. अब क्वेश्चन करने पड़ते हैं ना, फिर वो लेफ्ट कर देते हैं. चलो कोई नहीं, चलो जल्दी जल्दी चेक करो बेटे, टाइम से पहले.
हाँ जी, तो इसका आंसर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आपने निकालना है इसमें GDP at factor cost. So first of all, we need to observe all the values. Maximum values are related to income method. So we should apply that method. ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा GDP at factor cost is equal to NDP at factor cost plus depreciation. ठीक है, simply depreciation is required to be added. Rest everything is fulfilled with the help of NDP. तो ये बन गया NDP at factor cost में. Then we can expand compensation of employees, that is 800 plus operating surplus में parts have been given. तो first is given rent 150 ब्रैकेट में करके 150 plus interest 100. उसके बाद हमें दिया है profits 200. ठीक है, तो ये हो गया 150 plus 100 plus 200 plus mixed income is not given 0. ठीक, उसके बाद depreciation. तो depreciation is not given directly, we have to calculate. तो again जैसे पहले निकाला था, मैं बोल देती हूँ, डेप्रिसिएशन आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे हैव गिवन 300 माइनस नेट डोमेस्टिक नहीं दिया, तो अगेन उसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा. नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर डोमेस्टिक वर्ड नहीं दिया, सीधा ही लिख दिया नेट फिक्स्ड, बात एक ही है. नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, तो ये आ जाएगा 300 माइनस अगेन इन ब्रैकेट 200 प्लस 50, 250. तो माइनस कर दें तो आ गया डेप्रिसिएशन 50. ठीक, अब नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ 50 इन द गिवन फॉर्मूला. तो सारा आफ्टर डूइंग द टोटल वी गेट 1300. आ रहा है? ठीक, वेरी राइट. Yes, ma'am. वेरी राइट, शाबाश. साथ में रुपीस करोड़ लिख लेना, रुपीस करोड़ 1300. उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, अब पूछा है उन्होंने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो टू अब्रॉड के लिए पहले हम मेन फॉर्मूला के ऊपर ही आते हैं, डायरेक्ट ही स्टार्ट करते हैं. दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड टू अब्रॉड. ठीक, तो अब हमें क्या पता है यहाँ पर, पहले हमें निकालनी चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एज पर द सिचुएशन. तो उसका फॉर्मूला बनेगा, अब नाउ चेक इन योर टेबल व्हाट इज गिवन द हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज दिस फोर्थ आइटम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ये दिया हुआ है, तो फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं हम लोग, NFIA इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस, अब इसमें से क्या माइनस करें कि वी रिमेन लेफ्ट विद NFIA ओनली. तो वी शुड सब्ट्रैक्ट GDP एट MP, क्योंकि एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, एक डोमेस्टिक हो जाएगा, बाकी रेस्ट एवरीथिंग शुड बी सेम. तो माइनस करना चाहिए हमें GDP एट MP. अब GNP एट MP की वैल्यू दे हैव ऑलरेडी गिवन 1400 माइनस, अब GDP एट MP हमारे पास नहीं है, अगेन उसको ब्रैकेट में हमें बनाना पड़ेगा. तो ऊपर वाले पार्ट में वी हैव गॉट GDP एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक, अब उसके साथ आप देख लो क्या ऐड करें या माइनस करें. तो यहाँ पर वी नीड टू ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया GNP एट MP माइनस ब्रैकेट में GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, तो ये आ गया 1400 माइनस, फिर ब्रैकेट में 1300 ऊपर पहले निकाल लिया था हमने, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखो कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन 120. तो ये आ गया 1420. सारा कुछ कर कर आके आ गया -20. ठीक, तो अभी जो ये -20 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नाउ पुट द वैल्यू इन दैट इक्वेशन. तो -20 इज इक्वल टू फ्रॉम अब्रॉड दे हैव गिवन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 60 माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. तो अब पेड टू को एक साइड पे ले आओ, बाकी आपका आ जाएगा 60, उधर प्लस हो जाएगा, 60 प्लस 20 हो जाएगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 80. ठीक, रुपीज 80 करोड़, ऐसे करना है आपने. ठीक, चलो, तो अभी हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ है. हार्डली 2 मिनट्स आर लेफ्ट. इन द मीन टाइम मैं अगला क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ बिकॉज थोड़ा लेंथी होता है. कोई और मैं छोटे क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आपको, बाकी के क्वेश्चंस वी विल डू ऑन मंडे. ठीक है, अदरवाइज मैंने और लिख के रखे हुए थे, बट नाउ आई वुड लाइक देम टू डू ऑन मंडे. अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं अगर पॉसिबल है तो.
हाँ जी, सेविंग फंक्शन, यू कैन राइट द इक्वेशन, 1 मार्क का क्वेश्चन है. सेविंग फंक्शन इज गिवन -200 plus 0.25y. Saving function is equal to S is equal to -200 plus 0.25y. Find consumption when income is rupees 1000. Find consumption when income is rupees 1000. And second, investment multiplier. Two things are to be calculated. एक investment multiplier, and secondly we have to find consumption when income is rupees 1000. Please do. 700. नहीं, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ गलत भी हो सकता है. आप प्लीज इस तीनों बच्चे कर लीजिए. मैम 950. यस, 950. ध्यान से देखो जरा, दिया हुआ है सेविंग फंक्शन और पूछा है कंजम्पशन. तो जब हम सेविंग वाले में y की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग सेविंग. ठीक है, फिर जो सेविंग